हम लगातार चर्च में परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को होता हुआ देख रहे हैं। परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही बड़ा काम इस बहन की जिंदगी में किया, तो आइए इनकी इस मार्वलस टेस्टमनी को हम सुनते हैं। जय मसीह दी सारे भैन भरावां नूं। मेरा नाम सोमा राणी आ। मैं जलंधर दी रहन वाली हाँ। मैं आपदे जीवन की वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। 2003 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਂਜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ, ਮੁਰਦੇ ਦਿਖਣੇ, ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਅ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਟੈਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਫਰਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਚਾਚਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ 3-4 ਗਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਸੂਈ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੂਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਅੰਕਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। मैं देख रहा हूं लोगों को डिलीवरेंस लेते हुए, आजादी लेते हुए। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को खेल के जरिए बाहर आते हुए। दुष्ट आत्मा पर फायर उतरे, आग उतरे राइट नाउ। फायर होली घोस्ट। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा के ऊपर आग उतरते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹਲਕਾਪਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜੀਵਤ ਭਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਣਗਿਣਤ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। इस बहन का नाम शीतल है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये बहन की जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा काम किया, क्योंकि इस बहन को ब्रेन टीबी का रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इन्होंने ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, हॉस्पिटल चेंज करके देख लिया, पर कहीं से कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। और इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इनको लगता था कि मैं इस बीमारी के अंदर मर जाऊंगी। और ये बहन हर वक्त रोते रहते थे, इनको किसी चीज की कोई समझ नहीं रहती थी। तो डॉक्टर ने जब मेरी कंडीशन को देखा, उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में एडमिट कर लिया। तो कंडीशन को देखते उन्होंने मुझे, मेरी फैमिली को कहा कि इनको हमको एमआरआई करके देखना पड़ेगा। और उन्होंने उस समय मेरे ब्रेन का एमआरआई किया। उस एमआरआई में पता चला कि मेरे ब्रेन के लेफ्ट साइड में 13 mm सिस्ट है और मुझे ब्रेन टीबी है करके। डॉक्टर ने मेरी फैमिली से ये कहा कि अगर जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो कैंसर का रूप ले सकता है, जिससे इसकी डेथ भी हो सकती है। बट मेरी जो फैमिली थी वो मेरी कंडीशंस को नहीं समझ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि मुझे नॉर्मल पेन हो रहा है, ठीक हो जाएगा। बट मेरे अंदर जो पेन था वो मैं फील कर रही थी कि मुझे, मेरे अंदर वो क्या हो रहा है। पर जब अंकुर निर्मला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला और इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया, तो जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इनके लिए सामर्थ्य प्रार्थना करी। और उस प्रेयर को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो इनकी बॉडी में वो रिकवरी होनी शुरू हो गई और परमेश्वर ने उस बीमारी से इस बहन को चंगाई दी और एक नया जीवन दिया। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टमनी को हम सुनते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शीतल है, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 12 जनवरी 2024 को मेरे सिस्टर की मैरिज थी और 15 जनवरी को अचानक जब मैं घर में थी, उस समय मेरे घर में कोई भी नहीं था और मेरे घर में छोटी सी जो बच्ची थी उसको जब मैं नाश्ता कराने की जब मैं गई तो उस समय अचानक जब मैं अपने घर के सोफे पे बैठी हुई थी तो मेरे आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा गया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और जब मेरी छोटी सी बेबी वहाँ पे बैठी हुई थी, उस बच्ची को सिर्फ मैं कंटिन्यू देखने लगी और मेरी बच्ची अचानक देख के डर गई कि इनको क्या हो गया करके। और वो बच्चा तुरंत अपनी मम्मी को बुला के लेके आया कि मम्मी चलो, शीतल दीदी को पता नहीं क्या हो गया करके। जब उसकी मम्मी आई, उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल सुध-बुध बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे सिर्फ आँख खुला हुआ था। मैं एकदम से जीरो हो गई, जैसे इंसान 2 मिनट के लिए कोमा में चले जाता, मैं पूरी तरीके से कोमा में चली गई थी और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और उस समय मेरी बुआ की जो बेटी थी वो घर पे थी, उन्होंने तुरंत मेरे सिस्टर को कॉल किया। मेरी इस कंडीशन को देखते हुए मेरी फैमिली ने मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने जब मेरी कंडीशन को देखा, उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में एडमिट कर लिया। तो कंडीशन को देखते हुए उन्होंने मुझे, मेरी फैमिली को कहा कि इनको हमको एमआरआई करके देखना पड़ेगा। और उन्होंने उस समय मेरे ब्रेन का एमआरआई किया। उस एमआरआई में पता चला कि मेरे ब्रेन के लेफ्ट साइड में 13 mm सिस्ट है और मुझे ब्रेन टीबी है करके। डॉक्टर ने मेरी फैमिली से ये कहा कि अगर जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये जो क्लॉट है वो कैंसर का रूप ले सकता है, जिससे इसकी डेथ भी हो सकती है। मेरी सिस्टर है वो, उन्होंने कहा कि हम दूसरे हॉस्पिटल लेके चलते हैं करके। तो वो तुरंत उस हॉस्पिटल से मुझे दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गई। जब मेरी फैमिली मुझे सेकंड हॉस्पिटल लेके गई, जब डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया तो मुझे थोड़ा सुधार आया मेरी बॉडी में और मेरे घर वालों ने मुझे घर लेके गए। और घर जाने के बाद फिर मेरी फैमिली वाले ने देखा कि मेरी कंडीशन और भी घटती जा रही है, तो उन्होंने जब फिर मुझे 3rd हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने वो डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर ने जब मेरा सारा रिपोर्ट्स देखा और रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि इनकी कंडीशन तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनका ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी डेथ भी हो सकती है करके। फिर उसके बाद मेरे परिवार वाले मुझे चौथे डॉक्टर के पास लेके गए कि हम चौथे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो उन्होंने फिर मुझे चौथे डॉक्टर के पास ले गए। चौथे डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि अगर आप ऑपरेट नहीं करवाते हैं, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो मेरी फैमिली वाले घबरा गए कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आने लगा कि हम क्या करें, इसे कहाँ लेके जाए करके। तो उन्होंने कहा कि इनको रायपुर लेके चलो करके। उन्होंने जब मुझे 5वें डॉक्टर के पास लेके गए तो 5वें डॉक्टर ने जब मुझे एडमिट किया तो उस एडमिट के दौरान मेरी जो कंडीशन थी और ज़्यादा ख़राब होने लगी। मुझे एकदम से चिड़चिड़ापन होना स्टार्ट हो गया, मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। और मैं खाना तो खाती थी बट मेरे अंदर इतना चिड़चिड़ापन रहता था कि इससे उस हॉस्पिटल में जब जितने दिन मैं 6 दिन थी,
जितने दिन मैं 6 दिन थी वहाँ पे, उतने दिन तक मुझे मेरा मोशन जो था वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद हो चुका था और मुझे टॉयलेट आना भी बंद हो चुका था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरा जो सांस था वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो गया और मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाती थी। मुझे बहुत बेचैनी और बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी और मैंने अपने सिस्टर को कहा कि तू मुझे यहाँ से जल्दी लेके चल, अगर तू 2 सेकंड भी लेट करी यहाँ से तो मैं मर जाऊँगी। उन्होंने जैसे तैसे करके हॉस्पिटल का बिल पे किया, उसके बाद वो मुझे घर लेके आए। बट मेरी जो फैमिली थी वो मेरी कंडीशंस को नहीं समझ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि मुझे नॉर्मल पेन हो रहा है, ठीक हो जाएगा, बट मेरे अंदर जो पेन था वो मैं फील कर रही थी कि मुझे मेरे अंदर वो क्या हो रहा है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर भी उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गए और जब वो 6वें डॉक्टर के पास मुझे जब वो लेके गए तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि आप इतना टेस्ट क्यों लेते हो, इतना टेंशन क्यों लेते हो और ये अचानक ऐसे कैसे हो गया आपको करके, आप तो यंग हो और यंग को तो कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे एडमिट किया और प्रॉपर मेरा तुरंत ट्रीटमेंट चालू हुआ उसके बाद। और जब मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ तो फिर सारा मेडिसिन लिखा जितना ब्रेन का था, टीबी का था। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरे जो हाथ है वो पूरे सूज चुके थे। मेरे हाथ में इंसुलिन जो होता है वो बिल्कुल नहीं घुस रहा था, मेरे दोनों हाथ बहुत फूल चुके थे और जब वो मुझे नेटे डालते थे तो वो पूरा ब्लड बाहर आ जाता था। इतना ज़्यादा पेन था क्योंकि मेरे हाथ में एक भी जगह में ऐसी जगह नहीं है नस कि मैं इंजेक्शन लगवा सकूं। तो उन्होंने कहा कि आपके गले पे डाल के हम 4 पाइप डालेंगे जिससे आपको गले पे लेना पड़ेगा और उससे आपको इंजेक्शन लगेगा। मैं पूरी तरीके से एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं और मैं कैसे कर पाऊंगी हर चीज़ों को करके, क्योंकि मेरे पास एक छोटी बच्ची है, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उस बच्ची का क्या होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी और बहुत ज़्यादा एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको पहले फिर से MRI कराना पड़ेगा, ये MRI आपका प्रॉपर नहीं दिख रहा। उन्होंने फिर से मुझे MRI के लिए लिखा। जब 6वें डॉक्टर ने जब मैं MRI कराने के लिए गई तो मैं बहुत ज़्यादा डरी और घबराई हुई थी और जैसे मैं MRI रूम में गई मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और बहुत ज़्यादा बेचैनी स्टार्ट हो गया और जब मैंने मशीन को देखा तो मेरा हार्ट बीट जो था बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी। उसके बाद मेरा जो हार्ट बीट था वो इतना तेज़ हो गया, इतना ज़ोर ज़ोर से धड़कना चालू हो गया और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तब मेरी डेथ हो जाएगी, मतलब इतना हार्ट बीट तेज़ हो गया। जब मैं MRI मशीन में थी उस समय बहुत ज़्यादा मैं काफ़ी पेन में थी, लेकिन मेरा फेथ परमेश्वर पे था। मैंने एंजल्स को परमेश्वर के दास और दासी के रूप में देखा और उस समय मुझे बहुत ज़्यादा जो घबराहट हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी लग रहा था और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप डरो मत, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं करके। और धीरे धीरे मेरा जो डर था अब वो कम होना चालू हुआ और मेरा जो हार्ट बीट था वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो गया और मेरा MRI कब हुआ मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। जब मेरा MRI हुआ और जब मैं घर गई तो मेरा फेथ परमेश्वर पे था और मैं अंकुर न्यूरोलॉजी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने ANM में हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में अपने लिए प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म डाला। 4 फरवरी 2024 को अपोस्टल अंकुर न्यूरोलॉजी ने मेरे लिए जूम ले हैंड प्रेयर किया। जितने कैंसर पेशेंट हैं, आईज पेशेंट, पैरालाइज पेशेंट, स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट्स, ब्रेन टीबी, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जैसे उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया अचानक से मेरी बॉडी में एक गर्माहट महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बॉडी को एकदम छोड़ के गया। उस ले हैंड के बाद मेरी लाइफ एकदम से टोटल चेंज हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरे ये जो प्रॉब्लम थी वो मेरे लाइफ में कभी था ही नहीं और उस समय से अभी तक मैं हील हूँ। मुझे दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं आया। अब मेरे सर में कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है। मेरे सर में जो 13 mm सिस्ट था वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गायब हो चुका है और अब मुझे ब्रेन टीबी नहीं है। अभी मैं प्रॉपर तरीके से पूरी हील हूँ। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ और मैं जैसे पहले थी प्रॉपर तरीके से हर एक काम को कर लेती हूँ और कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत भी नहीं होती। घर का सारा काम, हर एक चीज़ें मैं प्रॉपर तरीके से कर पाती हूँ। जो उस टाइम मैं नहीं कर पाती थी वो सारे चीज़ों को अभी मैं कर पाती हूँ और अभी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। बहुत मतलब अपने आप में बहुत खुशी महसूस करती है अपने आप को कि अब वो दर्द, वो चीज़ें मेरी लाइफ में अब दोबारा नहीं है। अब आज मैं ब्रेन ट्यूब से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हील हूँ। जितने लोग बीमार हैं मैं उन लोगों को सिर्फ यही कहूँगी आपका जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर हो, क्योंकि सबसे बड़ा परमेश्वर है और उस पर भरोसा रखो, विश्वास करो क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा फेथ परमेश्वर पे था और आज परमेश्वर पर जब मेरा फेथ था तो आज मैं यहाँ पे हूँ और परमेश्वर ने मेरे जो ब्रेन में जो प्रॉब्लम थी उसको पूरी तरीके से हील किया।
इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बड़े चमत्कार किए जिसको देखकर भीड़ चकित हो जाती थी। यानी लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे संभव है। तो कुछ आज ऐसा ही एक बड़ा मिरेकल आप देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। जब आप सुनोगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम वीना है, ये मेरे हस्बैंड सुनील जी हैं। हम अम्बाला के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 2014 में हमारी शादी हुई। शादी के बाद हमने बच्चा प्लान किया। 2015 में हमारी बेटी पैदा हुई। थोड़े समय बाद हमारे बेटा पैदा हुआ और हम अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ समय बाद मेरे बेटे की डेथ हो गई और घर का माहौल बहुत उदास हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। सारा दिन रोती रहती थी। पति भी उदास रहते थे, बेटी भी उदास रहती थी, वो भी रोती थी। 2021 में हमने बच्चा प्लान किया तीसरी बार। जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट की तो मैं प्रेग्नेंट थी। बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। जब मुझे प्रेगनेंसी का 3rd मंथ लगा था तो एक दिन सपने में मुझे एक काला सा साया दिखाई दिया और वो कह रहा था कि ये बच्चा मुझे होने नहीं देगा। तो मुझे उसके बाद गंदे गंदे पैड्स ब्लड से भरे हुए दिखाई दिए। तो मैं घबराहट के कारण उठ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये क्या दिखाई दिया है। फिर अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए तो मैं अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में जब मेरा चेकअप हो रहा था तो डॉक्टर ने ये मुझे कहा कि बच्चे की धड़कन नहीं बनी है। तो मेरा मिसकैरेज हो गया। तो फिर दोबारा हमारे जीवन में उदासी आ गई कि इतनी बड़ी खुशी आने वाली थी, अचानक मेरे जीवन में ये क्या हो गया है दोबारा। उसके कुछ समय बाद 2022 में जब मैं चौथी बार प्रेग्नेंट हुई, मुझे पहला ही महीना हुआ था। तो जब मैं रात को सो रही थी वही साया मुझे फिर दोबारा दिखाई दिया और वो ये ऐसे बोलने लगा, ये बच्चा भी मैं होने नहीं दूंगा। जब मैं घबराहट से उठी और मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई तो फिर मैं दोबारा फिर रोने लगी। तो मैं उदास हुई। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो ये मुझे सुबह फिर डॉक्टर के पास ले गए। जब मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास सुबह ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। तो हम दोनों बहुत उदास हुए और फिर हम घर में वापस आए। इन हालातों के बाद फिर दोबारा हमने बेबी प्लान किया, लेकिन बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैं जब मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी तो मैं इसको लेकर डॉक्टर पे गया और डॉक्टर ने मेरी वाइफ को दवाई दी और उसने वो दवाई 1 मंथ के लिए खाई और 1 मंथ के बाद भी दवाई खाने के बाद हमें कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही मेरी वाइफ कंसीव कर पाई। तो उसके बाद मैं उसको किसी दूसरे डॉक्टर पर चेंज करवाया, शायद किसी और डॉक्टर से हमें आराम मिल जाए। और फिर जब हम 5वें डॉक्टर के पास गए तो उसने मेरे और मेरी वाइफ दोनों के टेस्ट किए और टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद उसने मेरी वाइफ को 1 मंथ के लिए दवाई खाने के लिए दी और कहा कि बेबी आपका कंसीव हो जाएगा। लेकिन 1 मंथ दवाई खाने के बाद भी मेरी वाइफ को कुछ भी बेनिफिट या कोई फ़ायदा नहीं लगा और ना ही वो बेबी कंसीव कर पाई। जब मेरी वाइफ को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था उस दौरान हम सब बहुत परेशान थे और यहाँ तक कि हमारे घर का हर एक मेंबर रात को अलग से अपने अपने कमरे में जाकर रोता था। जब मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी तो उस वक्त हमारे घर में बहुत ही गम का माहौल हो गया था और ना ही हम खाना खा पाते थे और ना ही हम अपने काम पर जा पाते थे क्योंकि हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। तो जब हम कभी भी अपने घर से बाहर किसी काम से कभी भी जाते थे तो लोग हमें देखकर अपने बच्चों के मुंह भी छिपा लिया करते थे। फिर एक दिन मेरी सासू माँ ने हमारे घर आकर मुझे अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार खामरा चर्च में जाकर आप आओ, वहाँ पर परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है और परमेश्वर के नाम से वहाँ पर बहुत अद्भुत काम होते हैं और परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करते हैं
तो बहुत से लोगों को बेटे की आशीष भी मिलती है। और जब हम पहली बार यहाँ खामरा चर्च में आए तो हमने यहाँ देखा कि बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को हमने सुना, और उन गवाहियों को सुनकर हमारा भी विश्वास बढ़ा कि जब प्रभु इन लोगों को इतने सालों के बाद बच्चे दे सकता है तो प्रभु हमें भी जरूर देगा। अंकुर रूला मिनिस्ट्री से जुड़ गए और लगातार प्रार्थनाओं को अटेंड करते रहे, और हम दिसंबर 2023 में खामरा चर्च में यहाँ मौजूद थे। और उस दिन प्रभु के दास ने जिन बहनों के पास बेबी नहीं है उनके लिए खास प्रार्थना की। अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में, जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही, जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया। जब मैंने उस समर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडक फील हुआ। तो जब हम घर गए अगले महीने, जब मैंने अपनी रिपोर्ट टेस्ट की तो मैं प्रेग्नेंट थी। जब मैंने अपना प्रेगनेंसी है टेस्ट पॉजिटिव देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने वो खुशी अपने पति के साथ शेयर की, ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब हमने अपने घर के मेंबर को बताया, वो सभी परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। परमेश्वर ने मुझे पूरे 9 महीने संभाले रखा, मुझे कोई भी शैतानी सपना नहीं आया। फिर 5 अक्टूबर 2024 को प्रभु ने मुझे हेल्थी बेबी है बॉय के साथ ब्लेस किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे पति बहुत ज़्यादा खुश थे, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। बेटी के 9 साल बाद मुझे प्रभु ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अब मेरी फैमिली पूरी कंप्लीट है। जो दुख हमारी ज़िंदगी में आया था, प्रभु ने उस दुख को खुशी में बदल दिया। जिन बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, प्रभु में विश्वास रखो। जैसे प्रभु ने मुझे बेटे के साथ ब्लेस किया है, वैसे ही आप सबको ही ब्लेस करेगा। और प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको आशीष देगा। इस बड़ी आशीष के लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु के दास जी का और प्रभु की दासी जी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। उसकी हजूरी बढ़ रही है हमारे बीच में। जोर से तालियों के साथ वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को स्वर के उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। सब जन अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हुए सब जन